Hello everyone, welcome to your channel Manware Education, and today in this session basically we will see the important 30 question from the March month, so from March 2024. So if you are targeting the CLAT 2025, so these current affairs, monthly current affairs will be very helpful for you, and if you are targeting others law entrances also, so this session is very helpful for you. And also here is a very important information. I also started the weekly current affairs as per the weekly basis, as per the CLAT pattern, so you can watch these video as per the weekly basis. So जहाँ पे मैं सारे questions को discuss करता हूँ as per the CLAT pattern. So weekly as well as monthly session if you will attend, so these question is highly expected for your exam. And one more important information, I will share these content, ये PPD चाहे वो weekly हो या फिर monthly वाला, आपको I will share in this group which is Telegram group and WhatsApp group. So link description में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना. I will share this PDF which is helpful for your revision, and also you can follow on these social media platform where you will get the exam related continue updates, and don't forget to subscribe because continue आपको updates मिलते रहते हैं. And if you will think this video is helpful for you, so definitely like and channel को subscribe कर लो. And one more important information, if you are preparing targeting the top NLUs and law colleges, and so here you can join the self-study program and live classes classroom program, which is very helpful for you in your preparation journey. With the help of these program you can score better and can get the admission in your dream NLUs and law colleges. So for the classroom programs, if you are Mumbai based, so Vasai, Dadar and Andheri, and for the Thane, Borivali, and for online you can call on this number 8828581455. So these all are the feature of these program. Even it's online or offline, expert faculty will guide you, dedicated material you will get. Okay, for more inquiry you can inquire on this number. Our counselor will guide you in a better way. Now see the most important expected questions which is very helpful for your exam. So see the first question, who is the first women sniper of the BSF Border Security Force. So जहाँ पे भी जो भी news first type का news होगा guys, so that is very important and expected for your exam. So as per the March month we will see here, so Suja, Sanjukta Paraskar, Marine, Joseph, Suman Kumari and Subhashini Sankaran. So what is the correct answer? So correct answer के साथ साथ here I will provide some additional information. So अभी के लिए आप चाहो तो रिवाइज कर लो या फिर इस PDF को ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा. So just revise this information. Here I mentioned some important information. For example, she is the first women sniper. So Suman Kumari become the first border security force first women sniper. तो ये fact याद रखना. Next यहाँ पे जो fact है कि founded the border security force is the India border guarding the organization. It's a border with the Pakistan and Bangladesh, founded in 1st December 1965 को इसका formation हुआ था BSF का. So ये also this is a one static fact. Who has secured the first position in the Khelo India University? Important question from the sports section. So what is the name of the university? Chandigarh University, Lovely Professional University, Guru Nanak University and Punjab University. What is the name of the university which is on top in medal tally? So correct answer of these questions will be the Chandigarh University. And some fact related to this question, see here, Khelo India University Game 2024, Chandigarh is on a top position with the 32 medals. So ये important fact हो गया. Then 18 silver, 21 bronze edition. ये कौन सा edition था? 4th edition था, गुवाहाटी असम, and it was held जहाँ पे हुआ. And mascot इसका था Astla Lakshmi, which is known as a butterfly. And first edition it was started in 2018. So देखो ये किसी भी एक न्यूज़ के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो देखो क्लैट बेसिस पे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे ऐसे ही सारे क्वेश्चन कनेक्ट करके पूछे जाते हैं. अदर लॉ एंट्रेंसेस में भी स्टैटिक या करंट अफेयर्स इसी तरह से कनेक्ट होते हैं. तो सारे जो भी फैक्ट उस पर्टिकुलर न्यूज़ से हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए. सो इन सब सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा. एक सेंट्रलाइज प्लेस पे आपको सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जा रहे हैं. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड? सो एज पर द रिसेंट रिपोर्ट जो रिलीज हुआ है उस बेसिस पे, इज इट चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड मंगोलिया? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री which has the lowest fertility rate? So correct answer इस क्वेश्चन का हो जाएगा साउथ कोरिया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.7
2 in 2023 and then fertility rate required for the population stabilization 2.1 का रिक्वायर होता है एक स्थिर या स्टेबलाइजेशन जो बोलते हैं पॉपुलेशन के एक बने रहने के लिए। और इसमें अगर से इंडिया का देखोगे तो 2.122 है एंड वर्ल्ड का जो अगर सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट देखोगे तो इट्स 7 चिल्ड्रेन पर वुमेन इन नाइजर एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ओके सो यहाँ पे इस रिपोर्ट के साथ आप सारे इन्फॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2027 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। सो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप का अनाउंसमेंट आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें कि लास्ट ईयर जो हुआ था 2023 में, जिसमें कि जो इंडिया के जेवलिन थ्रोवर हैं क्या नाम है उनका, नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट है इस स्पोर्ट के। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आया इस स्पोर्ट से रिलेट करके क्योंकि इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है। सो जस्ट इस कंट्री का नाम रिमेंबर रखो वेयर इट विल बी हेल्ड। सो चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड दीज आर द डिटेल्स। द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बुदापेस्ट हंगरी, जो लास्ट वाला था। नेक्स्ट यहाँ पे हु हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट वुमेन पिच कार्टर, जो पिच को टेक केयर करने वाले होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन है, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, इंडिया की फर्स्ट वुमेन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसिंता कल्याण बिकम द इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच कार्टर। सी हैज अचीव दिस फीट ड्यूरिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग। सो रिमेंबर रखना, सी इज द फर्स्ट वुमेन, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर हैज द इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस बीन इनॉग्रेटेड। सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। सो इज इट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो देखो जहां पे भी फर्स्ट लग जाए ना, चाहे फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, फर्स्ट मेट्रो, फर्स्ट टाइप का कोई भी न्यूज हो, इट्स वेरी हाईली एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। So it's in Kolkata and here I mentioned some static important information like first passenger train 16 April 1853 between the Bombay to Thane, first metro rail started in Kolkata, first railway tunnel Parsik tunnel Maharashtra। So इस टाइप के जो फर्स्ट स्टैटिक न्यूज है also you can update with these current affairs। Next one is where has India's first national dolphin research center been set up? So it's also the first dolphin research center. So it's in Lucknow, Kanpur, Patna and New Delhi. कौन से place in which city of India it's opened the dolphin research center? Correct answer इसका हो जाएगा पटना। So Bihar Chief Minister Nitish Kumar has inaugurated India's and Asia first national dolphin research. So that's why you can understand how it's important because ये India as well as Asia का first dolphin research center है। and then Gangetic dolphin is a national aquatic animal of the India 2010। नेक्स्ट है यहाँ पे हु हैज ओन द प्रो कबड्डी लीग 2024 टाइटल। स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट। सो पुनेरी, पाल्टन, हरियाणा सेटलर्स एंड दबंग दिल्ली एंड बंगाल वॉरियर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द कबड्डी टीम हु ओन दिस 2024 कबड्डी लीग? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पुनेरी पाल्टन हैज ओन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग द हरियाणा सेटलर इन द फाइनल ऑफ द 10th सीजन। ये जो इस साल का था 10th सीजन। बाय द वे इस न्यूज से सिर्फ आप जो विनर का नाम है उतना रिमेंबर रखो, इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड? सो इट्स ऑल्सो द फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड बाय इन विच सिटी? न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु सिटी। सो इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन विल बी launched in Bangalore Metro Rail Corporations Limited. This driverless metro line is called the Yellow line. So basically it's the AI technology will be used to monitor the track. So अब देख रहे हो AI भी ट्रेन ऑपरेशंस में यूज किया जाने लगा है। तो इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन बेंगलुरु सिटी में स्टार्ट हो रहा है। when is the International Women's Day celebrated? So इस पे रिलेट करके मैंने वीकली करंट अफेयर्स में भी पूरा डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। बाय द वे इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट डे सेक्शन से भी एक क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन होता है। सो इट्स ऑब्जर्व ऑन 8 मार्च, 7 मार्च, 5 मार्च एंड 6 मार्च। विच डे ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। थीम फॉर 2024 इज द इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। सो दिस इज अ answer. Next one is who has won the Miss
मिस वर्ल्ड टाइटल। सो देखो इंपॉर्टेंट ब्यूटी पैजेंट इवेंट से ये क्वेश्चन है, काफी एक्सपेक्टेड हो सकता है, पूरा का पूरा डिटेल दे सकता है, इस साल इंडिया में हेल्ड हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टलिना पी, यास्मीन जायथन, लेस्गो चोम्बो एंड लिटिका फ्रोटा। So what is the correct answer? Who is the current winner of the Miss World 2023 title? So इसका correct answer हो जाएगा क्रिस्टीना पी एंड मिस वर्ल्ड कंपटीशन 2023 अरेंजमेंट मार्च 9 2024। वेन्यू ऑफ द जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा और एक्सपेक्टेड हो सकता है एग्जाम्स के लिए। 7th एडिशन, इवन आई कैन से अदर्स एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहा हूं। तो जो भी अदर्स, चाहे लॉ सीईटी हो, चाहे फिर स्लैट एग्जाम्स हो, अदर्स लॉ एंट्रेंसेस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू विदाउट एनी डाउट। सो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड शेयर विथ अदर्स सो अदर स्टूडेंट ऑल्सो कैन गेट द बेनिफिट। Who has won the Santosh Trophy 2023-2024 title? So see here, as for the current affairs, the question may be asked, what is the name of the team who won the Santosh Trophy? As well as the next question may be possible, Santosh Trophy, it's related to which sport? So इसका correct answer हो जाएगा service, and this Santosh Trophy, it's related to football. इतना याद रखना. Okay, so all the details are mentioned here. The winner service, runner Goa, establishment इसका कभी होता 1941 में संतोष ट्रॉफी का, and it's related to football. Who has won the best film award at the Oscar Award 2024? So these options are Oppenheimer, Poor Things, The Holdovers, and Boy and the Heron. So what is the correct answer? तो Oscar Award is the most important रहेगा, वहां से जो भी टीम है उसकी अलग अलग कैटेगरी पूरी लिस्ट, अगर से आप कोई मैगजीन फॉलो करते हो, बेसिकली हम अपने स्टूडेंट को मंथली मैगजीन प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट को डिटेल पॉइंट टू द पॉइंट सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स जो अभी न्यूज में है उससे रिलेटेड के सारे कैटेगरी के जो भी मेल फीमेल और एक्टर एक्ट्रेस अलग अलग कैटेगरी में जो भी अवार्ड मिला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने जो फॉर्म किया है रिलेट करके बेस्ट फिल्म से, सो ओपेनहाइमर आप रिमेंबर रखना, नेम ऑफ दिस मूवी काफी न्यूज में है, काफी लेके एटॉमिक बम से रिलेट करके न्यूज में है, तो आप ट्राई करना डिटेल में स्टडी करने का एटॉमिक बम को भी, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एज वेल एज मूवी एंड अवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। हु हैज ओन द मेंस डबल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन? सो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है बैडमिंटन का। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर? सो यहाँ पे इंडियन प्लेयर है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। कोई दूसरे कंट्री के होते तो शायद उतना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो सात्विक सिराज एंड चिराग, ये याद रखना, एंड बोथ आर रिलेटेड टू द बैडमिंटन, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024? सो दिस प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? समटाइम क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि किस फील्ड से रिलेटेड है, जर्नलिज्म है, लिटरेचर है, या फिर आर्किटेक्चर है, या फिर मैथमेटिक्स है, या साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए, ऐसा जो भी ऑप्शंस रहेगा। तो यहाँ पे रिकिन यामामाटो करके इनका नाम है, याद रखना। सो जापानीज आर्किटेक्ट रिकिन यामामाटो हैज ओन द प्रित्जकर प्राइज, एंड प्रित्जकर प्राइज इट्स रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर फील्ड का, इसके नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। तो आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेट करके ही इट हैज बीन अवॉर्डेड द $1 lakh एंड ब्रोंज मेडल। सो जस्ट रिमेंबर, and it's related to architecture field. Next, which country has become the world largest arm importer? Most important question बन सकता है ये आपके एग्जाम्स के लिए। इज इट इंडिया, अमेरिका, फ्रांस एंड जापान? एंड इसके बेस पे आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडिया से रिलेट करके सारे पैसेज दे देगा कि किस कंट्री से कितना इंपोर्ट करता है, कितना डिफेंस डील होता है, क्या क्या चीजें हैं, तो इस तरह से पैसेज होगा। और वहां पे इस तरह से क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछा जा सकता है, कुछ स्टैटिक ओरिएंटेड भी पूछा जा सकता है। बाय द वे, एज फॉर द करंट अफेयर्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज नोन एज अ SIPRI, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। मोस्ट ऑफ द वेपन्स आर सप्लाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा सप्लायर है यूनाइटेड स्टेट, 52% इंडिया के टोटल आर्म इंपोर्ट का जो सप्लायर है, इट्स यूनाइटेड स्टेट। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स? तो देखो, रिसेंट रिपोर्ट आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी रिसेंट रिपोर्ट रिलीज होता है, ट्राई टू फोकस इन डिटेल, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करो। बेसिकली माय कंसर्न इज व्हाट, कि जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, हु इज ऑन अ टॉप, हु इज अ लोवेस्ट, ओके, और भी जो फैक्ट हो सकते हैं। तो यहां से जो आपको क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है, बेसिकली
जो क्वेश्चन था यहाँ पे, द रैंक ऑफ इंडिया इज 108. अब जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, इट मीन्स मेन एंड वुमेन का पार्टिसिपेशन इन अ जॉब, इन एजुकेशन एंड सम अदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो फैसिलिटीज होती है उसमें वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी इक्वालिटी है, उसमें अगर देखें तो रैंक ऑफ इंडिया इज 108 आउट ऑफ 193 कंट्री, विच इज नॉट गुड. ये डेटा, इट मीन्स दिस डेटा इज नॉट शो द इक्वालिटी ऑफ द वुमेन इज गुड इन इंडिया. सो अभी बहुत सारे फील्ड में नीड है वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन्स को और भी एजुकेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की. तो एज पर दिस रिपोर्ट यू कैन सी द स्टैंड ऑफ इंडिया. जस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट है यहाँ पे, हु हैज ओन द रणजी ट्रॉफी 2023-2024 टाइटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रणजी ट्रॉफी इट्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. और एज पर द करंट अफेयर्स कौन सी टीम इसकी विनर है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई. एंड मुंबई ने इस टाइटल को 42 टाइम ओन किया है एंड इट वाज द 89th एडिशन. ओके, तो आप देख सकते हो लगभग 50% तो मुंबई ने ही, मुंबई इज अ विनर. एंड रणजी ट्रॉफी इट्स रिलेटेड टू क्रिकेट, ये एक फैक्ट रिमेंबर रखना. नेक्स्ट यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन मेड द पब्लिक द डेटा इलेक्ट्रल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू विच पार्टी हैज रिसीव द हाइएस्ट डोनेशन. काफी इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है इलेक्शन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का. इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप जाके मैनूवर एजुकेशन का जो मेन चैनल उस पे देख सकते हो. एंड वेरी सून आई एम पोस्टिंग द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस स्कैम या स्कीम वाला पार्ट. ओके, तो बाय द वे एज पर द जो डिटेल अभी तक सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो डोनेशन मिला है एज पर द इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन सी पार्टी को मिला है, तो होप सो यू पीपल आर अवेयर. BJP is the correct answer. So Commission released the data election bond on its website on 14 March 2024. Electoral bond means the political donation. The government of India announced that electoral bond scheme 2017. अब ये पूरा डिटेल्स है जिससे रिलेट करके यहाँ पे जो कंपनी ने 1368 करोड़ का दिया है सबसे हाईएस्ट डोनेशन विच यू कैन सी. नेक्स्ट यहाँ पे, इन हाउ मेनी phases will लोकसभा इलेक्शन 2024 कंडक्टेड. एक सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो कितने फेजेस में ये इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है, तो 7, 8, 10 एंड 12. सो रिमेंबर रखना 7th फेजेस में ये इलेक्शंस कंडक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विच हु हैज कॉन्फर्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड 2024. काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है. यहां पे भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो हु इज अ करंट रिसिपिएंट, और सेकंड पूछा जाता है कि चमेली देवी अवार्ड इट्स रिलेटेड टू विच फील्ड, कौन से फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए एंड बी. इट मींस कृष्णा कुठार एंड रितिका चोपड़ा. एंड दिस अवार्ड हैज गिवन इन फील्ड ऑफ जर्नलिज्म के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, इतना आप रिमेंबर रखना. हु हैज ओन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 टाइटल. तो स्पोर्ट्स से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है. रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वुमेन्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द समवन एज इट्स नेशनल डिसेबल पर्सन PW आइकॉन. सो बेसिकली यू कैन से कि जो डिसेबल पर्सन के लिए एक एम्बेसडर या आइकॉन, किस स्पोर्ट पर्सनालिटी को यहाँ पे अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने. सो अवनी लेकारा, सिंह राज आदना, शीतला देवी एंड मनोज सरकार. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शीतल देवी. शीतल देवी हैज बीन डिक्लेयर एज अ इलेक्शन कमीशन इट्स नेशनल डिसेबल पर्सन्स आइकॉन. एंड शीतल देवी इज अ पैरा आर्चर, काफी वेल नोन आर्चर. इनका वीडियो आप यूट्यूब पे देखना, सो यू विल बी अमेज्ड कितना इनका टू द पॉइंट निशाना है. सो काफी वेल नोन आर्चर है इंडिया के, एज अ पैरा आर्चर बोल सकते हो या फिर पैरा एथलीट्स बोल सकते हो. हु हैज बीन अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान 2023. काफी इंपॉर्टेंट है अवार्ड सेक्शन से. सो यहाँ पे भी रिमेंबर रखना सरस्वती अवार्ड इट्स हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच फील्ड एज वेल एज हु इज द करंट रेसिपिएंट. सो करंट रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभा वर्मा आप रिमेंबर करोगे. एंड दिस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है. एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द KK बिरला फाउंडेशन. This is also very important. Next यहाँ पे क्वेश्चन है, which has become the world most polluted capital in the world air quality research 2023. So is it Delhi, Beijing, Paris and New York? What is the name of the city which is most polluted city? So correct answer याद रखना, यहाँ पे दिल्ली है. दिल्ली इसमें टॉप पे है according to the new report of by the World Air Quality Report 2023. Delhi has become the most polluted capital in the world. Bangladesh has become the most polluted country in the world.
सो यहाँ पे कंट्री की बात होगी तो बांग्लादेश, एंड सिटी की बात होगी, कैपिटल की बात होगी तो दिल्ली का नाम रिमेंबर रखना। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? सो देखो अगेन दिस रिपोर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और माई सजेशन इज व्हाट कि नियर बाई एग्जाम्स अगर से आपके रहेगा, कोई रिपोर्ट रिलीज हुआ तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ना कि ये इस रिपोर्ट का इंपैक्ट क्या है, इसमें फैक्ट क्या हुआ है, इंडिया का स्टैंड क्या है, एंड एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी लोवेस्ट पे है, पूरा आपको पूरा उसका डीएनए टेस्ट करना है। और इसी बेस पे मेरा जो वीकली सेशन है, उस वीकली सेशन को आप देखो। उस वीकली सेशन में मैं पूरे वीक से 5 न्यूज का एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। उस पर किस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, किस तरह के स्टैटिक जी के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करता हूं। तो अगर से उसने कंटिन्यू आपने देखना स्टार्ट किया तो आप एक हैबिट डेवलप कर लोगे न्यूज़पेपर रीडिंग का, कि न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स आते हैं उसमें किस टाइप के इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस सेशन को मेरे देखना, एटलीस्ट ट्राई करो एक हैबिट डेवलप करने का। उस सेशन से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, बहुत कुछ लर्निंग होगी। तो इंडिया का रैंक है 126 इन द यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑन 20 March 2024. Finland has been considered the happiest country in the world and India ranked the 126 among the 142 country in the world happiness report. तो इंडिया का अभी भी रैंक काफी लोअर है, काफी बेसिक फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी डाउन इन इंडिया। सो एज पर दिस यू कैन सी द रैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया शहीद दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका है जो कि इंपॉर्टेंट डे सेक्शन से। सो इसमें आपको जो रिमेंबर रखना है, सो 23rd March एवरी ईयर, March 23 ऑब्जर्व एज अ मैट्रियार्क डे, शहीद दिवस, और सर्वोदय डे to pay the tribute of the death anniversary of the freedom fighter Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Sivaram Rajguru, who led their life on the freedom of India. Also 30 January is observed as a matriarch day or Shahid Divas in memory of the Mahatma Gandhi. ओके, तो ये दोनों डेट आप याद रखना एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट डे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एंड अपकमिंग टाइम में पेरिस ओलंपिक से डेफिनेटली यू विल सी द क्वेश्चन। इंडिया को कनेक्ट करके जो भी डेटा न्यूज में आएगा आई विल ऑल्सो प्रोवाइड। आप अपने एंड से भी अपडेट रखना फॉर श्योर, एटलीस्ट इन योर एग्जाम 2-3 क्वेश्चन फॉर श्योर यू विल सी फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इज अवॉर्डेड, यहाँ पे ये क्वेश्चन दूसरा है शरद कमल। शरद कमल जिनको अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिया गया था, शरद कमल को जो मिला था दैट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो खेल रत्न अवार्डी विनर एंड 2-time कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल विल बी इंडियाज फ्लैग बेरर इन द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, पेरिस ओलंपिक किस कंट्री में होने वाला है 2024 का, तो पेरिस। ओके, और इसका जो मैस्कट है, मैस्कट भी फिजियन कैप है। फिजियन कैप इस तरह से सिंबल है, इस तरह से सिंबल है, दिस इज द मैस्कट ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो फिजियन कैप इसका मैस्कट भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबेल प्राइज। सो एबेल प्राइज इट्स रिलेटेड टू विच फील्ड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड हु इज द करंट रेसिपिएंट। सो माइकल टलग्रांड करके पर्सन का नाम है, जस्ट रिमेंबर रखना। ही इज अ नॉर्वेनियन अकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर ही इज अवॉर्डेड टू द 2024 एबेल प्राइज माइकल टलग्रांड ऑफ द फ्रेंच नेशनल सेंटर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च पेरिस। ही बिलोंग टू द फ्रांस एज वेल एज दिस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स फील्ड में जिनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन होता है उनको दिया जाता है। हु इज रिप्रेजेंटिंग द सऊदी अरेबिया इन द मिस यूनिवर्स 2024 कंपटीशन? तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिस सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्यूटी पैजेंट, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। सो फातिमा अली, लैला अहमद, आयशा अब्दुल्ला एंड रूमी अल खतानी। सो थोड़ा सा अरबियन नेम है, बाय द वे जस्ट रिमेंबर रखो द नेम ऑफ द पर्सन इज रूमी अल खतानी। सी विल पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सऊदी अरेबिया इन दिस मिस यूनिवर्स कंपटीशन, हियर यू कैन सी इन अ इमेज। ओके, तो इन डिटेल्स मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, करंट अफेयर्स से इमेज भी है, क्वेश्चन भी है, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है। यू जस्ट हैव टू वॉच, understand and revise, and if you want to download this PDF as well as weekly जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का एंड टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों में से कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड आई विल शेयर दिस PDF, तो आपको मिल जाएगा रिविजन्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बाय द वे इट्स माय सजेशन, इफ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो विच इज फाइन, या फिर किसी बुक से स्टडी कर रहे हो, या फिर
जो भी मैथड यूज करो, इफ यू थिंक आपका प्रिपरेशन बेटर है तो विच इज फाइन, अदरवाइज हियर यू कैन ज्वाइन अस फॉर बेटर स्कोर बिकॉज एक्सपर्ट फैकल्टी विल गाइड यू हियर। जो मटेरियल्स होता है स्टडी के लिए दैट इज हाईली रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्स। फॉर करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स यू कैन सी हाउ इज द कंटेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्चुअल कंटेंट जो हमारा पेड कंटेंट होगा हाउ इट्स बेनिफिशियल, तो सारा डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। फैकल्टी सारे एग्जाम्स लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको गाइड करते हैं। ओके, सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड तो आप ऑफलाइन के लिए वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली एंड पुणे we are very soon coming, we are planning to open in a Pune. And for live ke liye, if you are out of Mumbai, Maharashtra, so for live you can contact on this number. Our counselor will guide you and give you the all information related to this program, everything you will get. And after that, if you think this video is helpful for you, so don't forget to subscribe this channel because continue you will get the update and like the video. Okay, and after that anything else, if you have any doubt, any comment, any suggestions, so you can ask in a comment. Okay, so see you in next part, next April month current affairs next time we will discuss. And don't forget to follow the weekly current affairs, that is more beneficial. So every day Sunday 11 AM को हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, तो वो सेशन अटेंड करो। दैट सेशन विल improve your understanding how to update important current affairs as a passage format and how to connect the current affairs with the static GK. Okay, so see you in next session. Jai Hind.